Well, hello to the good people over the internet. This is Shopon on this side, your friendly host of all the podcasts you see here on Music Stan. I hope you all are doing extremely well. So, after a long break, we are back with the 19th episode of our very loved playlist, the Singer Songwriter Checklist. In this playlist, we invite singer songwriters from across the globe to talk about and know about their journeys of becoming musicians and who they are, how they do, and what they do. So basically, in this episode, we have with us the very lovely Pratik Gandhi. He is a singer-songwriter, producer, and a composer based out of Bombay. To know more about him, please do watch the episode till the end because there's a lot to learn. And lastly, a huge thank you to all the people who always stick their head out in search for all the episodes and expect things from us. Thank you so much. We've been out for a really long while, but now we're back in with a huge number of guests on our podcasts. We will be rolling out the episode soon, so thank you so much. And lastly, please don't blame or get tired of your social media addiction. Instead, give us a like and a follow, which doesn't cost you anything and helps us grow our channel. With all that being said, let's not waste any more time. Here's the entire session. Cheers. Hi, what's up? Oh man, you have so many. Perfect. There's so many guitars over there. Give me one. That's not fair. That's not fair. Take it. Perfect. That's your studio. That's your home studio you built. Yes. Wow, that's awesome. Awesome. Um, this is our first session that we're doing technically, and you just a brief thing about how this started. It's pretty interesting. So normally, I'm a musician by profession. I play music for a living. I'm a guitar player. So this I do by the side. It started out as a side. Now I get hundreds of emails. Our team gets hundreds of mails a month. So we have to consider artists all the time, and we like to do that. So we don't. I neither take a penny from artists, neither we earn a penny from whatever we put out, because the content we have close to around had 4,000 minutes of podcasts done so far with all the artists from across the globe. So it started out as पता है हम लोगों को you will be better familiarized with this, that we kind of go on YouTube and watch some so as aspiring artists we go to the YouTube और देखते हैं हम कि अच्छा एक interview सुनते हैं, which will kind of open our eye to some extent. But largely मैं नाम नहीं लूंगा, some really famous magazines and all that. उन लोगों का जब interview मैंने देखा था when I started out, I was like ये main topic को छोड़ के सब बोल रहे हैं. बकलोली कर रहे हैं simple बात में. Let's be honest. कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ये कर लो, follow your heart and money will fall down, all that kind of a thing. ये हमारे देश की खासियत है. वो समझेंगे नहीं कि हमको वाईफाई 870 रुपए पे करना है नेक्स्ट मंथ. ठीक है. It's tough. It's tough. So मैंने सोचा अच्छा what if, and I thought पहले मैंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया. पहले मैंने सोचा कि मे बी एक ऐसा चैनल है, बाकी सब चैनल अच्छे होंगे. बट मैंने शॉर्टलिस्ट करके आई रिसर्च्ड अ लॉट फॉर अक्रॉस 3.5 months. And I saw that most of the channels do the same thing, because ultimately what TRP का game है, they want the view. I think in every field it's going like this. What I believe is कि Correct. जो आपको चाहिए वो ढूंढना पड़ेगा. It's like that only. And now it's more difficult because the content quantity is more. It's much. Correct. So before it was easy to type and search or maybe ask someone, and nowadays it's tough. Like it's tough to hunt for good music. If you want to listen to some music, you'll end up getting confused yourself. वो आधा घंटा छानने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया, बंद कर दो यार, दिमाग खोटी हो रहा है मेरा. The phase. This is the time. I think this is the phase of overdoing stuff in particular subject. और जब आप देखते हो, आप वेट करते हो एंड तक कि यहाँ बोलेगा या यहाँ गाएगा,
या यहाँ पे कुछ ऐसी बात होगी, सो वो नहीं आ पा रहा है. एंड more or less everybody is being forced to make such kind of content, because again वही आपको घर चलाना है, आपको चीजें Simple. करनी है. सो आपको वो आज चीजें कर दी जाती है. वो इवन आई फेस्ड अ लॉट ये सब सारी चीजें. एंड देयर इज अ टाइम आई थिंक आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट. मतलब मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को शिफ्ट मारा है. एंड इट टुक मी आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है मुझे. व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू. व्हाट इज द थिंग आई लव इन म्यूजिक. मुझे वही चीज करनी है. तो वो चीज तक आने के लिए इट टुक मी अ लॉट. सो व्हाई, बिकॉज ये अगेन सेम चीज. आपको अगर लर्निंग चाहिए आप भूल जाओ यहाँ पे कुछ मिलने वाला है. आपको अगर सपोर्ट चाहिए आप भूल जाओ यहाँ कुछ मिलने वाला है. आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए आप भूल जाओ आपको मिलने वाला है. आपको यहाँ पे ऑनेस्टी चाहिए इस बिजनेस में, इस फील्ड के अंदर, भूल जाओ आपको मिलने वाली है. तो ऊपर ऊपर के तोते हैं. तो Guys, वो listen to what Pratik is saying. That's true. I'm very blunt. I'm being very blunt about the things which Absolute. बिल्कुल सच है. कोई वो नहीं है. मैं बिंदास सब चीजें बोल डालता हूँ. मुझे बोलते हैं कि इतना ओपनली नहीं बोलना चाहिए. नहीं मैं चाहिए बोल चाहिए. देता हूँ. क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्क? इन द एंड it's the art on the first line. It's the primary side, and secondary is the business, secondary is the audience, secondary is everything. First is your art. So वहां पे अगर कोई आके मेरे साथ इवन छेड़खानी करेगा तो मैं तो फिर भाई करना भी चाहिए. तब तो रिएक्ट करना चाहिए कि ये दिस इज द थिंग आई एम डिलीवरिंग. होता है ना आर्टिस्ट के साथ. आई प्ले सम सेशंस एंड समटाइम्स दे आर लाइक अच्छा ये बजा लो, रिकॉर्ड दिस, देन आई विल गिव यू द मनी. आई एम लाइक कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता यहाँ पे. ये है प्रॉब्लम है. आई थिंक it's the part. Either you are coming up with a lot of creation of yours, and plus you are having a backing of any supportive company or a lot of money, then probably it will just go off the grid. Deep pockets या फिर एक लेबल कैन सपोर्ट यू. बाकी नहीं तो फिर आप कंसिस्टेंट रहो, काम करते रहो. रास्ते में आए तो धक्का मारो. दैट्स द ओनली गेम. भाई मेरे रास्ते मत आए. मैं वरना प्रतीक को मेल कर दो, ही विल हेल्प यू आउट. ही विल हेल्प यू आउट, हेल्प देम आउट. मैं तो अपने सर्कल में जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, सबको सपोर्ट करता हूँ. मतलब इन अ वे की एटलीस्ट जितना मेरे पास कुछ काम है तो मैं पास ऑन कर देता हूँ. व्हिच आई एम नॉट डूइंग, आई पास इट ऑन. इवन इफ आई एम डूइंग, आई इन्वॉल्व मोर 2-3 पीपल. आ जाओ तुम लोग भी, चलो यार. चलो okay. सब करते हैं. हाँ. इट्स ओके टू डू थिंग्स कोलैबोरेटिव वेज, जहाँ पे इन द एंड मेरा ही पैसा शेयर होता है. बट मुझे अच्छा लगता है वो सही जगह पे जा रहा है, और जो भी आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं साथ में, दे आर ऑल्सो गेटिंग एन हेल्पिंग हैंड एंड मोटिवेशन ऑल्सो कि हाँ भाई काम होता है, काम चलता है, काम कर सकते हैं अपने हिसाब का. और मैं सबको फिर फ्रीडम देता हूँ, अपना टाइम देता हूँ, स्पेस देता हूँ काम करने का. Whatever, because I have been producing music. It's been again same 9-10 years. I produced music for films and all. सब किया एक टाइम पे, and then came down to one straight point कि अब मुझे ये करना है. तो अभी मेरा सिर्फ मुंह से एक ही चीज निकलती है, नो ब्रो, नॉट पॉसिबल. किसका भी फोन आता है नहीं, फिर मैं अपने असिस्टेंट लोगों को फोन करता हूँ या दोस्तों को फोन करता हूँ. फ्री है, करेगा, ये कर ले, ये ले नंबर, जाओ भाई, जियो जिंदगी. टाइम कर लो. उसके बाद घूम के वही उधर ही पॉइंट पे आओगे कि मेरा म्यूजिक आ गया जी, मैं तो ये करना है. जी. हाँ एग्जैक्टली. अब उन लोगों को जो अभी नया इंडस्ट्री में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि लूप होल है. व्हाट डू यू डू? तुम भी गली में हाँ तो एक चलता हुआ आदमी आता है, मैं भी खेलूंगा 2 बॉल. हाँ जा ले, खेल ही लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं. That's the idea. No, lovely. This is a very valid point. And so from this kind of a space, this I started this one with very local bands. I'm based in Kolkata, so very local bands. I used to hundreds. I used to, before I started this. When I started, I to kind of had to mail how hundreds of, like, more than, I don't know. We have mailed 5,000 above artists across the globe now. पहले because पहले आपके पास 0 बेस है तो कौन आएगा भाई. सिंपल.
तो अब पीपल वर काइंड ऑफ कंसिडर इट, जैसे सपोर्टिंग पीपल नहीं होते वैसे सपोर्टिंग पीपल भी होते हैं. दैट्स अ मोर हाँ. इन परसेंटेज व्हाट आई हैव Yes, yes. सीन. तो दे सेड okay why not this that, and from there lot of big artists have come, like from Berklee College of Music, some Oh. professors, some producers from America, a lot of bands from India, metal bands, rock, and then lots of different artists from different backgrounds. One is a metal guitar player, one is a R&B producer, one is a blues jazz guitar player. So all sorts of like a good diet of musicians. So I'm kind of Hmm. very glad that I didn't expect it that this would be in a good level, but it happened. What to do now? um, एक्सपेक्टेशन जहाँ पे वहाँ पे मेहनत है अलग टाइप की. आप correct, correct. एक्सपेक्टेशन को रीच आउट करने को ट्राई करते हो. Mm-hmm. सो आप एक जर्नी मिलती है, आपको एक स्पेस मिलता है, आप उसमें जाते हो. व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट, मतलब व्हेन यू डू व्हेन यू डू इट, सो देयर इज नथिंग, नो देयर इज नो लेवल और बैरियर. तो आपको वो जो भी चीज आती है सारी अच्छी लगती है. 1 2 200 2000 2 लाख जितने भी लोग ऐड होते हैं उस चीज के अंदर, जितनी भी चीजें हो रही होती हैं ना, मतलब मुझे भी नहीं पता था, तुमको भी नहीं पता था, हम लोग ऐसा इंटरव्यू कर रहे होंगे, पॉडकास्ट कर रहे होंगे, व्हाटएवर हो गया. And people are thinking that we have been friends for 10 years. कोई friends ये नहीं है. This is the first time तो we're आर्टिस्ट meeting. को ये चीज होती है. We artists are like this, हम लोग मिलते हैं 10 मिनट नहीं हो गया बियर लेके बैठ जाएंगे. We were kind of cool people all the time. अलग जात के लोग हैं. अलग जात के लोग हैं. चमड़ा चमड़ा फमड़ा नहीं हम लोग का. हम लोग अलग रह के एक्चुअली. So this session normally कोई script होता नहीं है as such, but I kind of ask questions which would be helpful for all the listeners who listen to Yes. our sessions. तो मैं जानना चाहूँगा the first thing that I would like to question is, how did Pratik Gandhi start his journey? Like, were you born into a family of music or were you into something else? Engineering कर रहे थे फिर दिल टूट गया and कॉमर्स में था मैं. आई वॉज डूइंग कॉमर्स इन माई 11th 12th. जैसे हम लोग अपना सब्जेक्ट शिफ्ट करते थे उस जमाने में, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बट वो मेरे टाइम को पे भी होता पता नहीं था. क्या हो रहा है. 10th सब कुछ पढ़ रहे हो और देन 11th में आपको बताते हैं कि ये ऑप्शन है. अरे ओ व्हाट इज दिस, ऐसा भी होता था. तो कॉमर्स कर रहे थे एंड देन आई वाज वेरी मच इनटू आर्ट्स, पेंटिंग्स एंड ऑल. वो मेरा एक अच्छा साइड में चल रहा था चीज जो मैं करता रहता था अपने शौक से. म्यूजिक कहीं दूर तक भी नहीं था. 12th होते होते एक क्या बोलते हैं उसको, आसपास म्यूजिक बज रहा होता है, आप नोटिस करते हो खाली. तो वो एक नोटिसिंग हुई थी मेरे ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, कि म्यूजिक कोई चीज है. उसके पहले तक मुझे लगता है घर में जितनी भी मूवीज देखी हमने स्किप करके देखी है. गाने हटाओ यार, आगे देखो. नहीं नहीं लेकिन गाने में लड़की लड़की था तो नहीं देखते थे वो. गाने आगे बढ़ाओ. मैं और मेरे अंकल हम लोग दोनों मिलकर पिक्चर देखते थे, छोटे छोटे थे. आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, फटाफट आगे बढ़ाओ, चलो क्या लड़ाई हो रही, चलो मारो. तो वो देखा है यार. तो 12th में म्यूजिक स्टार्ट हो गया था एंड देन व्हेन आई लेफ्ट माय स्कूलिंग, हो गया, खत्म कर लिया, स्कूल टॉप कर लिया. कॉलेज के लिए जब मैं इंदौर में, ये सब फ्लेक्स, वहाँ ये फ्लेक्स हो गया. ये मेरे ये सामने नहीं यार, करना है. मैं स्कूल में घटिया स्टूडेंट था. मैं टॉपर था 12th में, लेकिन मैं उसके पहले तक मैंने पता नहीं कितने में मैं फेल हुआ हूँ निकला हूँ, बट 12th में मैंने 4th किया था निकलते टाइम. और ये लास्ट है, फिनाले राउंड अच्छा होना चाहिए, आई डोंट केयर. चक्का मार के निकलना है, सिंपल. तो वो कर दिया एंड देन वहां पे आपने एक क्या बोलते इमेज बना दी, हो गया, एक तस्वीर लटकी हुई है वहां पे, ईयर में ये था, बस ठीक है. और फिर न्यूज़पेपर में आए थे आप? न्यूज़पेपर में आए थे. पापा को डाउट हो गया था कि तो ये गलत तेरा नाम आ गया, ये तू नहीं है. ये होता नींद में है सुता वैसे, के ये मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत होता है कि तू तो कैसे कर सकता है. पापा ने मेरे सुशील सर को फोन लगाया जो हमारे आर्ट के टीचर थे. टॉप किया है प्रतीक गांधी. ये क्या देख रहा हूँ मैं? हाँ, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ अब आ रहा हूँ मैं मिठाई लेके. तो फिर पापा को कंफर्म हुआ, अच्छा टॉप तो किया लड़के ने, ठीक है. मेरा फील्ड था भी नहीं, वो थोप दिया था मेरे ऊपर, मैं क्या करना है, कॉमर्स वॉमर्स.
हम लाइफ में आर्ट ऐसा बनाएंगे, आर्ट जब बिकेगा, आर्ट जब होगा, आर्ट का कुछ भी होगा तो कॉमर्स वाले लोगों से काम करवाएंगे ना यार, अपने का थोड़ी काम है। ये सही है, ये कॉमर्स लोग अब ऑफेंड हो जाएंगे। तुम लोग देखो भाई, हमारा अनलिमिटेड होता है आर्ट वाला सीन। तो एनीवेज वो किया, ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी वापस, बीबीए फाइनेंस, वो मैंने लिया था प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से। वहां मैंने देखा दो चार म्यूजिशियंस को इनिशियल पीरियड में, कि लाइफ में पहली बार गिटार आप जब कॉलेज में देखते हो, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर देखते हो, दो तीन सिंगर देखते हो, तो आई वाज लाइक कि यार ये अच्छा कुछ है यार, एक्टिविटी है दिस सम बिकॉज मेरा वो पेंटिंग और वो तब तक छूट गया था, वो गया फर्स्ट ईयर में आ गया, क्या ड्राइंग बनाऊंगा यहाँ पे। तो वो म्यूजिक में आ गया मैं, वहां पे हल्का हल्का इंटरेस्ट आने लगा था। देन वो पहला पॉइंट था जब मुझे ऐसा लगा कि आई कैन सिंग, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। एंड एक गिफ्ट बोल सकते हैं आवाज के अंदर कि एक था, एक इमोटिव मैनर था जो लोगों को अच्छा लगने लगा। जहां पे भी मैं दो लाइन गा रहा हूँ, चार लाइन गा रहा हूँ, पीपल यूज टू गेट कनेक्ट। तो मुझे वहां से वो चीज अच्छी लगी। मेरे फैकल्टीज और जितने भी साथ के स्टूडेंट से दोस्त थे, उन्होंने बोला कि यार अच्छा, यू कैन डू एंड इंदौर में उस टाइम पे ज्यादा कुछ था नहीं म्यूजिक का, गिन चुन के दो चार बैंड्स थे, तभी वो बैंड वाला माहौल था। आई एम टॉकिंग बैंड वाला अबाउट माहौल था। 2008। गॉट इट। तो वो एक बैंड वाला सिनेरियो था। तो स्टार्टिंग ऑफ कॉलेज, 2000s। हाँ कॉलेज में जब वो फिर बैंड फॉर्म होते हैं ना कंपटीशन के लिए, तो करेक्ट, मैंने हाँ। उस पार्टिसिपेशन के लिए दिया, और जो भी ऑडिशन था मेरे को निकाल दिया कि अभी तो आप बिगनर हो, यहाँ पे प्रो लोग चल रहे हैं। तो मैं बोला अच्छा ओके अच्छा, कोई नहीं, बट कोई आ नहीं। तो सकता हूँ, जैम सेशन में तो बैठ सकता हूँ, जी म्यूजिक को जी। एंजॉय कर सकता हूँ। तो मैंने वो सारे म्यूजिशियन को दोस्त बना दिया। मैं उनके साथ में जैम करता था, देख रहा था वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सब तो वो रियल टाइम देख देख के मुझे अच्छा लगने लगा। वहां से एक हो गया कि यार म्यूजिक इज ड्राइविंग मी टाइप्स, इट्स मूविंग मी मोर देन एनीथिंग। मतलब लाइफ में और इतना मूवमेंट मैंने किसी चीज पे किया नहीं। इवन पढ़ते टाइम भी आई वाज लाइक कोल्ड, तेरे को तो मैं खत्म करके छोड़ूंगा, हट चाहिए, उसके बाद तो देखूंगा भी नहीं। फाड़ के बट फेंक दो दिस बुक्स। दिस वाज लाइक काइंड ऑफ मूविंग मी अ लॉट, कि यार मेरे को कुछ बोलते हैं ना, आप इमोशंस आपके और ऊपर आ जाते हैं, आप फील करने लगते हो, आप एनहांस हो जाते हो, जी। आप एक पर्सनालिटी डेवलप करने लगती हो म्यूजिक के साथ, जैसा म्यूजिक सुन रहे हो करेक्ट। आपकी पर्सनालिटी दिखता है वो। तो वो मेरे साथ सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो कोई जादू वाली चीज है, मैजिक हाँ, है। ये कॉलेज हाँ में था। म्यूजिक, हाँ ये कॉलेज में था। वहां से फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया, वो अपना फोन बेचा, गिटार उठाया, जो सबकी अलग अलग कहानियां होती है वैसी मेरी भी मैंने कुछ मैंने ऐसी। साइकिल बेचा था। मैंने अपने, मेरे पास वो था नोकिया 6270, बड़ा मुझे उस टाइम हाँ पे हाँ फोन किया। मैं हाँ। अपना फोन, कि फोन मेरा अच्छा होना चाहिए, घड़ी और फोन अच्छे होने चाहिए, कुछ भी हो बाकी चलेगा, जेब में पैसे नहीं, खाने के पॉकेट। फोन अच्छा तो होना वो चाहिए। वो फोन बेच के आ गया मैं इंदौर के सेकेंड हैंड फोन वाले मार्केट में, और वहां पे वो छोटा सा फोन उठा लाया, नोकिया कुछ 1100 1200। हम्म। और बाजू में ही गिटार वाली दुकान थी, वहां पे गया बढ़िया, और चेरी कलर का गिटार लेके आया, कैप्स, मुझे याद है आज भी। तो कैप्स का गिटार में उठा के लाया, एंड के अब ए मैं पी गिटार, एस आई रिमेम्बर। हाँ अब मैं गिटार सीखूंगा। और कहाँ से सीखूंगा पता नहीं। अब मैंने टीचर ढूंढना स्टार्ट किया। अब मुझे टीचर मिल रहे हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा यारो, दोस्ती, ये वो गाने सिखा रहे हैं। मैं बोला मैं क्या करूँ इनका, ये तो हो गया है। मेरे मेरे ऐसे वियर्ड आंसर निकल रहे थे, मैं क्या करूँ इनका, ये तो हो गया है। हाँ करेक्ट, आई एग्री। आई मेरे को वांट टू, कवर आर्टिस्ट नहीं बनना है। मुझे पता भी नहीं था ना उस टाइम पे कवर ये होता है, ओरिजिनल ये होता है। वही वही मेरा तो वही। खाली ये निकला कि यार मैं इसका क्या करूँ, ये तो है ऑलरेडी, इसको मैं सुन रहा हूँ। तो मेरा रहता है कि मुझे बनाना है, मैं कैसे तो बना वहां सकता वहां मुझे कोई नहीं मिला। तो फिर वहां से एक नई गणित स्टार्ट हुई, नया नया यूट्यूब था, यूट्यूब पे चीजें देखी, गूगल पे जाके बुक्स डाउनलोड करी, कुछ बुक खरीदी, प्रिंट आउट निकाले उनके, स्पाइरल जा जाके, अब कॉलेज में तो आदत लगी गई थी ये सब चीजें करने की। स्पाइरल बाइंडिंग वाले बुक्स बना रहे मोटे मोटे। और म्यूजिक की पढ़ाई मैंने कब शुरू हो गई मुझे भी नहीं पता चला। और कहाँ म्यूजिक थ्योरीज, वेस्टर्न क्लासिकल, नियो क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल, रागा, स्केल, फलाना ठिकाना, सब धीरे धीरे मैं पढ़ने लग गया। और मुझे अच्छा लगने लगा कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, कुछ तो मैं भला कर रहा हूँ शायद अपने आप के साथ, कि मैं म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर अ, काफी लोगों ने मुझे वहां पे बोला, 3 साल खत्म होते होते फोर्थ ईयर मैंने ड्रॉप ले लिया था कॉलेज।
वहाँ पे भी अच्छे स्कोर किए थे मैंने, मुझे याद नहीं कितना किया था क्योंकि मैं सर्टिफिकेट नहीं उठा के लेके आया अरे भाई ग्रेजुएशन। साहब। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं ये छोड़ूंगा ना तो मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अपने घर में टंगा के तो नहीं रखूंगा कि यार एक सर्टिफिकेट पड़ा है पीछे, अगर कुछ नहीं That's होगा a तो very very brave strategy. यार मैं ऑप्शन इसमें यहाँ पे नहीं कर सकता, ये रहने दो। मैं वो देवी एल यूनिवर्सिटी में कभी गया ही नहीं, मुझे लगता है आज भी वहीं पड़ी है। कभी बड़े स्टार बन जाएंगे तो वो उनको बोलेंगे भाई म्यूजियम में डाल दे, बन तो गए देखने के लिए आप, लगा। और कितना। नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, ये शुरुआती चीजें हैं, तो खाली ये रीस्टार्ट है मेरे लिए। तो एक मैं बताऊंगा वो भी क्या हो रहा है मेरे साथ में। बट ये म्यूजिक ऐसी ही चीजें करके गया वहां से। फिर मुझे किसी ने बोला कि मुंबई चले जा, वहां पे चीजें हो जाएंगी, सीखने को मिलेगा। तो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया यहाँ पे आके 2012 में, साउंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ये सब चीजें। म्यूजिक सीखा इंस्टीट्यूट में, छोटा मोटा काम वाम किया, फिर अपना खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तब तक 2012-13 में सॉफ्टवेयर लॉजिक और ये काफी ज्यादा हाइप में थे कुछ लोगों के बीच में। तो मैंने लॉजिक सीखा, बट मेरे पास एप्पल नहीं था, तो मैंने एबल्टन पे उसको ट्रांसलेट करा धीरे धीरे करके। अच्छा। एंड सर्टेनली 2-3 साल के अंदर आई गॉट दिस एबल्टन ट्रेनर वाला सर्टिफिकेट। मैंने वो भी कोर्स कर लिया था बाहर, पॉइंट ब्लैंक से वो भी कर लिया मैंने। हाँ, पॉइंट ब्लैंक। कॉलेज से तो मुझे ऑफर आ रहे थे कि सर आप एबल्टन चला रहे हो पूरे इंस्टीट्यूट में, तो कोई नहीं चला रहा, आप यहाँ पे सिखा दो, ये आपको 15,000 रुपये देंगे। मैंने बोला, बस 15,000 रुपये देगा, मुझे नहीं करना है ऐसे सिखाना है, मैं अपना सीखूंगा। मैंने अपनी चीजें करी, कॉलेज से निकला, म्यूजिक प्रोड्यूस किया, तो लंबा चला है वो। फिर एक है ना, सिंगिंग छूट गई, कॉम्पोजिशन छूट गई, बैंड तो इंदौर में ही छोड़ के आ गया था क्योंकि उनको आना नहीं था। मैं बोला यार भाई हिम्मत करोगे तो चलो, नहीं तो फिर यहीं रहो। तो मुझे लगता है आज सब लोग में से शायद मैं ही म्यूजिक कर रहा हूँ, सबने छोड़ दिया है। तो मेरे अंदर शायद गट्स थे, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आया सब कुछ छोड़ के। तो वो जब आप चीजें पीछे छोड़ते हो ना, तो वो वर्क करती हैं, सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं, जी। वो वर्क करता है। अगर आप जैसे खाना छोड़ते हो, डाइट पे जाते हो, वो वर्क करता है। शुगर जी। छोड़ते हो, वो वर्क करता है। आप कोई चीज पाने के लिए अपना एक टाइम पूरा सेक्रीफाइस कर देते हो, अपनी सारी इंजॉयमेंट सेक्रीफाइस कर देते हो, वो वर्क करता है। तो मेरे लिए सारी चीजें वर्क कर रही थी। तो फिर मुझे तो हिम्मत आई और ज्यादा कि यार नहीं, करना है, अपनी ये वाली सारी चीजें करनी है। आराम से टाइम लेके करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है, पता सब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए फ्लूक में कोई गाना एक हिट हो गया और उसके बाद दूसरा कुछ पता ही नहीं है, फिर वो आप वो 50% 60% वाली कैटेगरी में आ गए जहाँ पे आपको जानते समझ सब गया है, मैं। लेकिन सवाल जवाब करते हैं कि भाई अगला कब आ रहा है, और वो बंदे को पता ही नहीं है कुछ, करूं क्या मैं। तो ठीक है, अगर आपको वो वाली चीज जो जिसको वायरलिटी बोलते हैं या जिसको फेम बोलते हैं, So you अगर वो didn't run टाइम के after साथ virality, instant virality. मुझे यार वो करना है, तो यार फिर उसके 4 तरीके हैं, है ना, वो फॉर्मूलाज हैं कुछ, इसको अप्लाई कर दो आप वायरल हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ कसम से। ये कुछ फॉर्मूला घंटे, सीखने के लिए लोगों को इंस्टाग्राम पे जाना होगा। हाँ वी ऑल नो बस दैट। वो आप चले जाओ, हर हर एक एरा में एक पर्टिकुलर एक चीज आती है और वो चल रही होती है 2-3 साल तक, उसके बीच में आप चले जाओ, खड़े हो जाओ, बस आप वायरल हो जाओगे। वैसा कर दो कुछ, लेकिन उसके बाद क्या करोगे फिर? तो वो वैसे नहीं होना। मैं चाहता हूँ म्यूजिक लोगों तक पहुंचे ईमानदारी से, और गलती से ना पहुंचे कि वो निकल जाएगा, फिर वापस से समझ भी नहीं आएगा आर्टिस्ट कौन था। वो बहना नहीं है। जब आप बोलते हो ना कि आप एक बुक लिख रहे हो, तो बुक ऐसे एक रात में तो नहीं बनती है, नहीं। वो बन रही होती है सालों से, और लिखने जब बैठता है आदमी तब उसको और साल लग जाते हैं। तो वो एक पूरा कवरेज वो होता है है, पूरा। आर्क है। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ज्यादा वो सिनेरियो था भी नहीं, है भी नहीं। मैं म्यूजिक के साथ ऐसे रहता हूँ कनेक्टेड। तो जी। मुझे वो कनेक्शन चाहिए होता है। जब मैं वो लूज कर देता हूँ, मैं स्टूडियो बंद करता हूँ, मैं बाहर बैठता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं घूमता हूँ इधर उधर, और जब मुझे वो वापस मिलता है कनेक्शन, में वापस आके बैठ जाता हूँ। मैं जबरदस्ती ऐसे गाने वाने बनाने नहीं बैठता कि ओके विद द काम फ्लो, आया बैठ। जब जब आ रहा है अंदर से तब। हाँ, और क्योंकि करने को तो यार अब टेक्निकली मैं इतना ज्यादा अच्छा काम करता हूँ कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये सिचुएशन है, ये गाना बनाना है, 4-5 लोगों को जमा करूंगा, बना दूंगा एक रात में बैठ के। बट फिर उसमें कुछ मजा नहीं है ना, वो हो गई वो मजा नहीं चीज है। फिर। ठीक है, मतलब इट्स ओके, लोग कर रहे हैं। सबका म्यूजिक को कंज्यूम करने का, उसको ऑपरेट करने का, उसको यूज करने का, मिसयूज करने का अलग अलग फैक्टर्स हैं। हर आर्टिस्ट अलग है, कोई किसी का मैच नहीं है।
जी, और सब लोग अलग अलग है, वो अच्छी बात है, अलग ही होनी चाहिए। अलग ही होना चाहिए। हाँ, वो आई थिंक अलग होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के जैसे हो जाते हो तो फिर आप एक और ठप्पा लग जाता है तो उसके जैसा है। अलग ही अच्छा है। अलग ही अच्छा है। ये म्यूजिक आया ऐसा चलता चलता 2018 तक मैंने काफी म्यूजिक प्रोड्यूस किया, अलग अलग लोगों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बहुत काम किया मैंने। IMDb और ये सब चीजें अपने आप बन गई जो होती है, नॉलेज पैनल फलाने का। मैं इन पे कभी फोकस किया भी नहीं था। देन 2019 आई वाज लाइक यार, मैं गाना गाने आया हूँ, म्यूजिक बनाने आया हूँ। हाँ, मैं ये वो तो 10 साल पहले छूट चुका है इन कामों के तो चक्कर छूट से। का क्या करें, क्योंकि हाँ, अब साउंड में फ्लोट हो गए लंबा, सीखने के चक्कर में उसके अंदर बह गए, बिकॉज वो साउंड है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, जी, अनलिमिटेड है वो। जी, यू फिर कैन डू मैंने व्हाटएवर यू वांट विद दैट। मैंने डिसाइड किया कि यार अब यहाँ पे वापस एक सेक्रीफाइस लगेगा, कि जो आपने क्लाइंट्स बनाए हैं मुंबई में रह के, उनको ऐसे हाथ जोड़ो कि अब हम म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आज से हम ये आ, बंद कर रहे हैं, और आज से हम वापस बैंक खाली वाली दाल स्थिति में जा दाल चावल तैयार कहाँ है, गए यार? वापस तैयार है। और वही हुआ। इनिशियल 6-7 महीने कुछ काम नहीं था। हाउ मेनी और क्लाइंट्स दैट डिड यू like get yourself before this? मैंने बहुत काम किया है। आई थिंक आई एम कैरिंग राइट नाउ सम 40 TB ऑफ डेटा। मैंने इतने गाने प्रोड्यूस किए हैं। हार्ड और ड्राइव मैंने क्रैश ना कर जाए। ये वो सारी ड्राइव्स रखी हुई है। मुझे अब ऐसा, आजकल जो चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जितने आगे चलेगी, तो मेरा मन है कि ये सारे साउंड्स को मैं किसी इंजीनियर को दे दूं 6 महीने के लिए, एंड देन एक बहुत अच्छा लूप लाइब्रेरी क्रिएट करके मैं उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करा दूं लोगों के लिए, बिकॉज इट कैरीज ऑल दोस इंस्ट्रूमेंट साउंड्स जो आजकल तो हाँ, कोई बचेगा। करेक्ट, मेरे करेक्ट। उसमें रिकॉर्ड करके रखे हैं, मेरे सिंथ के पैचेस, मैंने जो सिंथेसाइजर के हम्म। टोन्स डिजाइन किए थे, मैंने जो राइट। चीजें बनाई, मैंने जो ड्रम लूप्स बनाए, व्हाटएवर सब कुछ है उसके अंदर, एंड सेफ। मुझे वो चीज, EQ and compression presets as well. बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वोकल चेंज पड़े हुए हैं, बेस लाइन की चीजें पड़ी हुई हैं, 3-3 बेस लाइन लगी हुई हैं किसी चीजों में, आर्पिजिएशन के, आर्पिजिएटर्स के Correct. पैचेस पड़े हुए हैं, गिटार पैचेस पड़े हुए हैं, बहुत कुछ है मतलब। क्योंकि मैंने बहुत रैंडम अलग अलग काम किया, अलग अलग ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो सारी चीजें मैं सीखता गया और उसको सेव करके मैंने इकट्ठा करी। तो ये म्यूजिक प्रोडक्शन वाला जो चीज आ गया था अंदर, कि हार्ड कोर में चला गया था उसमें ना, वो ब्रेक करके जब मैं इधर आया वापस से कि यार अब मुझे म्यूजिक करना है, तो अब कौन तुमको इंटरेस्ट लेके दिखाएगा भाई कि हाँ तेरे को काम दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो वाली साइड तो कभी किसी को दिखाई नहीं, यहाँ पे दिखा ही नहीं, हाँ, राइट। ही That's नहीं a है। different challenge now. आपके ऊपर तो वो टैग लगा हुआ, भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, एक्स अमाउंट चार्ज करता है तभी एंट्री देता है, नहीं तो स्टूडियो से भगा डालता है, पता नहीं कैसा आदमी है। तो ये है, ऐसा शुरू से मैंने बना के रखा था कि मेरा काम, मुझे मेरे साथ काम करना है तो ये तरीके हैं, नहीं तो जाओ यहाँ से यार। क्योंकि जाओ। मैं अपने काम के साथ, टाइम के साथ, मेरा पीस भी थोड़ा बहुत बेच डालता हूँ उनके साथ में बैठ के। तो जी। वो क्या है, वो बहुत महंगा है, उसको तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्लाइंट लोग। तो बट फिर भी एक्स अमाउंट यू कैन चार्ज, कि हाँ भाई तो मेरा इतना टाइम सर खा रहा है यहाँ पे बैठ के, पता है इसके 2-3 दिन तक ये हैंगओवर जाएगा नहीं मेरे सर से, जो तू यहाँ पे सर देके जा खाने रहा के है। 700 रुपए। हाँ, तो वो चीजें हुई, देन फिर वो ड्रॉप आउट किया, बहुत सारे क्लाइंट छोड़ दिए, लैक्स ऑफ रुपीस वाला जो काम होता है जो महीने का आपका, वो आपने छोड़ दिया, एंड देन यू अगेन चोज टू रीडेवलप एंड रीफाइंड दोस थिंग्स। तब तक आपने कुछ एंड सेव किया होगा शायद, वरना getting the past that 6-7 months was तो। नहीं, एक्चुअली वो क्या था ना कि मतलब सेविंग वेविंग तो ठीक है, मैं कुछ कर भी लेता हूँ तो उसको फिर कहीं कुछ हो जाता है, प्लगइन खरीद लिए, कुछ साउंड्स खरीद लिए, कुछ तो हो जाता है वाह। उसके साथ में, हाँ, वो हो जाती है चीजें, उस पर मैं जाता भी नहीं हूँ आगे। बट ये वाला जो मोमेंट था, इसमें छोटे मोटे पैसे कहीं से आ रहे थे, कुछ चीजें चल रही थी, अ, जो जो मैं चाहता था उससे रिलेटेड ही थी, कि मैंने गाने पिच करना स्टार्ट कर दिया लेबल्स को, तो कहीं से कुछ एडवांस आया, कहीं से कुछ चीजें आई, बट मोर और लेस जो आपका एक ग्राफ ऐसा जा रहा था, आप जो एक प्लान करके आते हो कि यार हाँ पैसे कमाना है, सब कुछ करना है, और अपने आप को और एडवांस करते जाना है, वो सब हो रहा था। बट मेरा म्यूजिक गायब हो गया, और मैं जो म्यूजिक बना रहा था वो फिर मेरा नहीं था, वो इन सब लोगों के साथ काम करके जो मैंने कंज्यूम किया था, क्योंकि एक एक ट्रैक पे जब मैं प्रोड्यूस करता था तो उसको 100-100 बार सुनता था, तो मैंने इनडायरेक्टली वो कंज्यूम कर लिया, वो कंजप्शन में मैंने अपना म्यूजिक कहीं खो दिया। वो उसको ढूंढने वाली फिर वो रिचुअल शुरू हो गई कि भाई साहब गलत फंस गए। तब तक तो आपकी वो, उम्र क्या थी? 24-25 के आसपास? मैं अभी 34 हूँ। लगता नहीं हो वैसे आप। परफेक्ट है। अरे
थैंक यू। ये जिम वर्कआउट्स, डेली वर्कआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ। मैंने तो बहुत इसको इन important. कर लिया इयर्स। तो आई थिंक दिस इज ओनली टेकिंग मी बिफोर, तूने इतना टाइम जो बर्बाद किया है, तो चल तेरे को एटलीस्ट फिजिकली मेंटली नीचे हाँ, ले जाता हूँ मैं। तो ऐसा मेरे साथ हो बुलाओ गया है सारे कि मुझे क्लाइंट्स को अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस वहीं से शुरू कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। राइट। बस बस अक्कल ज्यादा आ गई है अब। उस टाइम पे मेच्योर था मैं। हाँ, तो वो सिर्फ लोग बोलते थे कि यार ये है, कर ले, ये काम करना है, वो करना है। तो हिसाब किताब रहता नहीं था, किसी में 1 महीना लग गया, किसी में 3 महीने चले गए। किसी ने पैसा तो नहीं इन दी दिया, एंड भाग गया। बहुत सारे ऐसे लिस्ट बनी हुई है। एक दिन सोचता हूँ कभी कुछ होगा तो ऐसे करके स्क्रीन पे डाल दूंगा, लो आ जाओ। या फिर इनको एक कॉल करके बोलो, भैया वो 5 साल पहले आपके साथ एक सेशन हुआ था, उसका उसका 1700 रुपये आज तक नहीं मिले मेरे को। मेरे वो 100 वाले नहीं है, मेरे लैक्स वाले ही हैं सारे। लैक्स वाले हैं सारे, हाँ। सब सब भयानक अमाउंट, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 7 लाख, ऐसे नहीं अटके पड़े नहीं हैं। दिया बड़े आपको? नहीं, नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं दिया, मैं तो नाम भी नहीं लेता ना बात करता हूँ। दीज आर तो वेल नोन ठीक है। पीपल। या क्रैप। दिस इज हाउ इट इज व्हेन यू व्हेन यू व्हेन यू थिंक एवरीबॉडी इज लाइक यू, इट्स लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने डिलीवरी दे दी तो मुझे पैसा मिल जाएगा, तो वो कभी हुआ नहीं। इसीलिए इनका ये मिलने वाला है। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं। see, मुझे जो मिलना है वो मुझे कहीं से भी आ जाएगा। आई करेक्ट। आई नो दिस पर्टिकुलर पार्ट इन एट अ वेरी कॉन्फिडेंट लेवल। जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, और मुझे उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे उससे कुछ एक्सपेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से होनी चाहिए कि मैं आज आई एम जो हूँ केपेबल। कल से बेटर हूँ, और कल आज से बेटर होऊंगा। और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसके बीच में आप इसको कितना गिव अवे करते हो, यही है मेरे लिए। तो यही है। मैं ऑलवेज आई आई बिलीव इन पासिंग ऑन। कि मुझे अगर कोई ट्रिक पता चली है, कुछ चीज पता चली है, या कुछ आइडिया है, तो मैं उसको पास ऑन कर देता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि ये आइडिया बड़ा बन सकता था, ये हो सकता था, मैं पास ऑन कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए नहीं है ये, तुम लोग कर लो, तुमसे रिलेटेड है। तो मुझे वो चीज मेरे अंदर शुरू से है। एंड वो टीचिंग वाला नेचर भी है, कि मैंने म्यूजिक सिखाया है लोगों को, इंस्ट्रूमेंट सिखाया है, म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया है। तो वो सारी चीजों की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो जी। उसने मुझे हेल्प किया मेरे वो टाइम पीरियड में, जब हम्म। मैं बिल्कुल मैंने सब बंद कर दिया था। एंड देन मैं कुछ भी बना रहा था तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो गाना इसके जैसा लग रहा है, ये तो यार इसके जैसा लग रहा है। और ये ऐसा दिस इज द थिंग करीबन वी गो थ्रू, राइट? 2-3 साल तक हुआ। धीरे धीरे बीच बीच में अच्छा कंटेंट भी चर्न आउट हुआ, ऐसा नहीं है, जो बहुत यूनिक था, अच्छा जो गाने चले भी है मेरे। कुछ कुछ जो मैंने डंप कर दिए वो मुझे ही ऐसा फील आ गया कि यार ये इसके जैसा लग रहा है यार, नहीं करते। फिर एक और चीज ये करते 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 भी मैं, कि यार ये ठीक है, हो रही है चीजें, लेबल आ रहे हैं, गाने लेके जा रहे हैं आपसे, आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बड़े बड़े एक्टर्स पे ऐड कर रहे हैं, बड़े बट अगेन जो एक आर्टिस्ट की भूख होती है ना, कि मेरा गाना और मेरी आवाज वो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो पीछे क्यों रह गया? राइट। वो वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं है? वो इतना ओवर शैडो हो गया, या अननोटिस चला गया, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्या? या ये कमेंट सारे फेक है? गॉड नोस। तो ये जब शुरू हुआ तो फिर वापस से एक आया लेवल, जो अब जिस पॉइंट पे हूं मैं, कि मैंने बहुत सारे गाने बना दिए, कुछ कुछ म्यूजिक वीडियो शूट कर दिए। एक अभी मैंने 2 दिन पहले रिलीज किया, और आई थिंक नेक्स्ट मंथ जितना भी मैंने शूट किया हुआ है वो सारा रिलीज होके खत्म हो जाएगा। बट पिछले 3 महीने से मैं जो बना रहा हूँ अब, जो अब आगे मैं लेके आऊंगा मेरी इच्छा से, वो इट्स अ टोटल डिफरेंट म्यूजिक व्हाट आई वाज डूइंग टिल नाउ। एंड डेफिनेटली आई एम अबाउट टू गिव अ सेंटर शॉक टू एवरीवन। मैंने कसम खा ली है वो। दूसरी चीज, जो गाने बन के पड़े हुए हैं, डेमोस पड़े हुए हैं 200-300, जो जोन मैंने कैरी किया हुआ है इतने साल से, रोमांटिक, सैड, लोफाई, चिल, और एक हल्का फुल्का सूफी टच, फोक, ये वाला जो एक सब्जेक्ट था पूरा, इस subject में बहुत सारे पार्ट्स आ गए। करेक्ट। तो इनमें जितने भी डेमोज रखे हुए हैं, वो मैंने सेल आउट के लिए ओपन कर दिया। भाई जिसको लेना है ले जाओ, जाओ ले जाओ। मेरा इससे कोई नाता नहीं है, क्योंकि अब मैं जो बना रहा हूँ, अब मैं जिस पे मेहनत कर रहा हूँ, बिकॉज इट टुक मी 8 months अगेन टू यू नो ड्रॉप एंटायर म्यूजिक, ड्रॉप द लिसनिंग सेशन ऑफ माय ओन ट्रैक्स। मैंने वो बंद किया था लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में।
नवंबर से मैं शूट पे गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने काफी गाने शूट किए अपने। देन आई थिंक अप्रैल से मैंने वापस स्टार्ट किया म्यूजिक बनाना, और अब मैं लेके आ रहा हूँ कुछ खतरनाक चीजें जिसपे जो जो एक पर्सनालिटी है मेरी जी। अंदर से, जो बाहर नहीं आती है, जिसको मैं कभी भी लेके नहीं आता, एंड दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। वो ऐसा यूकेलेले और गिटार वाला आदमी नहीं है, वो बहुत तोड़फोड़ है। वो तोड़फोड़ जो, वो जो चेन अटैक, तो मेरा म्यूजिक जो अब आने वाला है, जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आराम से टाइम लूंगा 1 साल, वो एक्चुअली चीजें बदल देगा। क्योंकि वो करने के लिए लोगों के पास पेशेंस और टाइम नहीं है, जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ढंग से अगर मैं बोलूँ तो, और जिसपे आपको लिटरली टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और आप और आपके साथ जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबके शक्ल पे सिर्फ आपको ना दिखता है कि नॉट वर्किंग, बनने के बाद नॉट वर्किंग। तो मुझे अब मजा आ रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें जो बनती थी, हाँ ब्रो ये गाना अच्छा है दे दो, ये अच्छा है दे दो, मुझे कुछ वो है, क्या है मतलब, क्या हो रहा है ये? अब मैं जो बना रहा हूँ, नॉट वर्किंग नॉट वर्किंग नॉट वर्किंग, नहीं अच्छा लग रहा है, इससे और चीज अच्छी हो सकती है, क्या साउंड में क्या गड़बड़ हो रही है, नहीं। एंड आई एम फोकसिंग मोर ऑन द म्यूजिक पार्ट एंड द लिरिकल पार्ट एज वेल। दोनों चीजों पे काम कर रहा हूँ। जो प्रोग्रामिंग मैंने इतने सालों करी है, जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की, तो वहां पे मैं चीजें कर रहा हूँ। सिंस दिस इज द एरा ऑफ लूप्स एंड एआई, तो यहाँ पे किसी में दम नहीं है बैठ के सिंथ डिजाइन करना, और टाइम नहीं है चीजें बनाने का। तो Correct. We have lost the patience level, I think. और अब जो जनरेशन भी आएगी, तो वो भी वही आने वाली है, सब टाइप करेंगे आई वांट ट्रम्पेट साउंड ऑफ ई माइनर 110 बीपीएम, ट्रम्पेट बजते रहेंगे, वो क्लिक करता रहेगा, फिर एक ट्रम्पेट उठ के गाना फिर बना फिर देगा जो फिर उसके फिर पाप। क्यूबेस पे डाल के उसको क्वांटाइज कर देंगे बार टू बार, और एक ड्रम बीट फेंक देंगे, हो गया लोफाई सॉन्ग। चलो रिवर्ब डाल देंगे थोड़ा। तो ये जो चीजें हो रही हैं अभी, तो ये तो अब एक्सट्रीम होने वाली है। एंड मजा इस बात का है कि अब इस सब सेगमेंट के अंदर आप कुछ डिजाइन करने में लगे हो, वापस से वही मैनुअल स्टाइल, वही चीजें, वही टोन ढूंढना, बनाना, दिमाग खराब करना, उस पे अलग अलग चीजें डाल के एक्सपेरिमेंट करना, 10 स्पीकर में सुनना। तो वो मुझे मजा आ रहा है। तो मुझे समझ में आया कि एक मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है जो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जाके सोचा नहीं करता। हार्दिक पांड्या का जो डॉक्यूमेंट्री चल रहा था पिछले टाइम, अभी कुछ राइट। दिनों से, राइट। उसमें ट्रैक है बिलीव, वो मेरा ट्रैक है। तो ओह। स्टार स्पोर्ट्स, तो आई एम ऑफिशियल वेंडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स, उनको काफी म्यूजिक बना के देता हूँ मैं। वाओ। तो वो मेरा ट्रैक है वो। तो वो हम जब वो कर रहे थे ना, वहां पे उन्होंने एक मतलब हमको एक डॉक्यूमेंट शीट दी थी मुझे, कि लिरिक्स में ये वर्ड्स यूज करना। दो वहां पे वो काफी सारी चीजें चेंज हुई, बट एक था कि जर्नी है और माइंडसेट है, तो मैंने उन दोनों को मिला के एक लाइन बनाई थी, जर्नी नहीं ये तो माइंडसेट है। तो अच्छा। वो लाइन दैट्स उन्होंने नाइस। तो वो लाइन उन्होंने तो नहीं ली, बट मैंने ले ली। आपने ले मैंने ली। उसको यहाँ लगा दी कि यार जर्नी नहीं है तो माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट वाले फॉर्मेट पे मैं जब आया हूँ, तो मजा आ रहा है मुझे तो काम करने में। मतलब मैंने अभी तक आई थिंक 25 म्यूजिक पीसेस बना के रखे हुए हैं पिछले 2 महीनों में, और उनमें से मतलब ये 25 डिलीट करने के बाद के, इनमें से कुछ और डिलीट होने वाले हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो डिलीट हो जाए करेंगे, उड़ जाएंगे, निकाल दूंगा, फेंक दूंगा मैं। वो वहां से सेग्रीगेट करके चीजें होगी, कुछ और बनाऊंगा, बट ये प्रोसेस चलेगी, कुछ लंबी चलेगी जी। यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक आने के लिए बड़ी वो चीजें लगी अंदर, जी। कि यार जी। क्या है क्या नहीं। आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट छूट भी जाता है, बहुत सारी बार छूट जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे जब आप देख रहे हो कि अगर आप कोई भी एक जॉनर टाइप करते हो, तो आपको हजारों करोड़ों गाने दिखते हैं उसके अंदर। आप गूगल पे जाके देखते हो, रिसर्च करते हो कि स्पॉटिफाई पे एवरीडे कितने गाने रिलीज हो रहे हैं, तो इट्स 1 लाख प्लस। ये कैलकुलेशन में अब आप म्यूजिक बना रहे हो और इतना ओल्ड स्कूल जा रहे हो And मेरी so तरह। it better be good. It better be the best. What तो you're अब putting वो out. वो नहीं है कि आप इधर एवरेज उस कैटेगरी में आ जाओगे और कुछ करोगे। नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप योर सेल्फ, लाइक बिकमिंग ए सेपरेट पिलर ओनली। तो Correct. मेरा अकेला साइड में खड़ा है ना Correct. देखने के लिए लोग जाते हैं, तो मेरा वो माइंडसेट चालू हो गया अब। मैं जिधर हूँ अपने आप को वहीं से राइज करने के लिए ट्राई करूंगा, और अपने साथ पूरी टीम जितने भी लोग हैं सबको लेके जाऊंगा। एंड आई विल स्टार्ट बिल्डिंग दिस सिनेरियो, जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज के अंदर जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, भाई आ जाओ, जिनको ये करने में, क्योंकि
आपको यार दो टाइप के लिरिक्स राइटर होते हैं, एक जिनको बिठाओ 10 मिनट में गाना लिख के चले जाएंगे, उनको पता है क्या बेचने में आ रहा है, और एक वो जो उसको मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज को कि यार एक राइटिंग प्रोसेस भी होती है। तो ये दोनों चीजें हैं, जिनको वो चीज को बिजनेस बनाना है बिजनेस बना लेते हैं, और 5-6 साल बाद फिर रोते हैं कि यार ये तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। और मेरा ऐसा था कि मैंने कभी उसको ज्यादा अपने पे आने नहीं दिया। साउंड इसलिए रह गया क्योंकि इन दी एंड वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था साउंड का मेरी ओर, क्योंकि मैंने गिटार से जब स्टार्ट किया और जब इतना सारा साउंड मुझे मिल गया, वीएसटीज ये वो सिंगल शॉट्स फलाना ठिकाना, तो मेरे लिए तो अरे वाह सब बनाएंगे अपन। तो वो चीज शुरू हो गई थी। वो एक होता है ना, आप इमेच्योर होते हो, आप सब कुछ आपको करना अच्छा लगता है। फिर जी मैंने वो बैकग्राउंड सिनेमैटिक एपिक म्यूजिक डबस्टेप रैप ये वो पॉप सब बना दिया था, बट सब दूसरों के लिए। तो ये जर्नी है मेरी म्यूजिक की, जो आपका सवाल था कि कहाँ से शुरू हुआ, ये यहीं से शुरू हुआ है सारा, एक्साइटमेंट से शुरू हुआ था। नहीं बहुत सीरियसनेस पे आ गया है। नहीं 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 बहुत सही है. This is great insight into a musician's journey who has come so far, you know. uh, the main point in your journey was you came from humble backgrounds, so you didn't think about मेरे को you know फटाक से चाहिए. आज का टर्म है हाँ ना, मतलब क्विक मनी, क्विक फेम. आई डोंट बिलीव इन क्विक थिंग्स इवन। मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मैं बहुत पेशेंस से खाऊंगा, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बहुत शांति से करूंगा। एंड आई एम दैट पर्सनैलिटी, आई एम नॉट दैट क्विक पर्सनैलिटी, यू नो। बिकॉज अगर वो, मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ चीज अचीव आप हो रही है ना, और उसमें एक वो प्रोसेस ही नहीं हुई है जी अचीवमेंट की, तो आप दूसरी बार घंटा अचीव कर पाओगे, मतलब इतना ब्लंट बोल सकता हूँ। और सिंपल. मेरे सामने खड़ा कर लोगों को जिन्होंने एक बार अगर टॉप क्लास में चीजें अचीव करी और दूसरी बार पहुंचे वहां पे, एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। वो एक बार वाले लोग हैं, वो एक बार ही रहते हैं, एक बार के बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है, पूछता क्योंकि भी उनके नहीं. पास वो पूरा नहीं था, वो हो गए बस। तो ये सर कुछ है चीजें, और ये होती अच्छी है। ये जो भी हो रहा होता है ना आपके साथ में, उसमें कहीं ना कहीं एक तो आपका खुद का जो क्या बोलते हैं उसको, काम जो आप करते हो, जैसे जीते हो, जो भी चीजें करते हो, उसका रिजल्ट्स होता है, वो एड ऑन होता रहता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। और आई थिंक इट्स अबाउट मूवमेंट। आप जिधर मूवमेंट लोगे वहां पे चीजें शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा और बाहर जाके चिल्लाने लगूंगा, तो आजू बाजू वाले लोग आ जाएंगे, क्या हुआ, ये मूवमेंट बोलते हैं। मैं यहाँ आपके साथ में बैठा हूँ यहाँ पे कनेक्शन लेके, तो मतलब ये मूवमेंट हो रही है हमारी, इट्स इट्स एनर्जी। आप जो जहां जाओगे सब कुछ कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपने आप को ऐसा बना रखा था अभी तक कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, आगे भी ये रहूंगा, और फ्लो के साथ चीजें करता रहूंगा, और ज्यादा जबरदस्ती नहीं करूंगा। बट अभी पिछले कुछ 3 महीने से मैंने थोड़ी सी फोर्स और डाली है इसके अंदर, कि नाउ यू नो आई वांट टू डू पर्टिकुलर ओनली दिस थिंग। और अभी जितना भी आसपास जो घूमेगा ना, वो इसी जगह पे डालूंगा। तो वो करते करते ये मेरा नो ना और बड़ा हो गया है, ये नो और बड़ा होता जा रहा है, एंड आई एम लाइकिंग इट, यू नो, बिकॉज एवरी टाइम यू से नो यू सेव टाइम। सही है. सिंपल अबाउट आई एग्री. ये मैं टैगलाइन रखूंगा. से ये नो एंड सही यू है. सेव टाइम, ये सेफ टाइम, यू से नो सिंपल. एंड यू सेव एवरीथिंग। हाँ, भसड़ नहीं चाहिए. हाँ, करो या ना तो जाओ. तो वो हुआ है, बट ठीक है। हम लोग वो जो लास्ट हमारा सवाल था वो रह गया आपका, कि डेजर्ट सोल का, डेजर्ट जो सोल आज का. हाँ. वो हो गया वो चीज। तो Even वो sorry to interrupt you. Even you got a lot of interviews for this Desert Soul music, the video itself. वीडियो देख के लोगों को था कि ये क्या करके आया है। ये क्या तो ये क्या वो करके आया है, ये कौन है पागल. ऐसा ये ऐसा कौन है रिएक्शन. पागल, ये क्या है, हाँ मतलब ये क्या ही कर लेगा, ये क्या चीजें हैं, ये सब हाँ कौन हाँ करता है इसको, हाँ. ये सब बाहर के लोग करते हैं, हम थोड़ी करते बाहर हैं। के लोग करते हैं. हाँ. तो वो अलग अलग चीजें होगी थोड़ी सी। हम्म. बट हाँ वो अवार्ड मिला उसका, जी. वीडियो का Congrats for बेस्ट। that. Congrats for your hard थैंक work.
मैं तो सिर्फ उसको एक विजन दिया था एज अ डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर हूँ भी नहीं, बट हाँ, जब आप ऑडियो बनाते हो तो आप डायरेक्टर ही हो। अगर कोई सुने बैठ के, आज तक सुना नहीं तो इसलिए कभी म्यूजिशियन ने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि म्यूजिशियन को गाना लेने के बाद भगा देते हैं, तो निकल यहाँ से सब। चल भाग। तेरी क्या तजुर्बे, तेरी क्या औकात, निकल यहाँ से, निकल वो, हम देखेंगे अब। और फिर ऐसा कुछ क्रैप बना के लेके आते हैं और क्रैप अपलोड करते हैं और फिर सिस्टम सारा फेल हो जाता है, एंड देन दे वंडर क्या हो गया। वंडर करते रहो ब्रो। मैं तो यार सबको सिखाता हूँ, सबको बताता हूँ चीजें, और पहले ही मेरे इसमें वो सा ट्रायंगल बना रहता है क्वेश्चन वाला, कि भाई वार्निंग, ये वार्निंग। सारे पैसे डालने के पहले ये वार्निंग है। ये सारा इन्वेस्टमेंट आइडिया जो भी तुम कर रहे हो यहाँ पे, जो दूसरों को देख के कि हम म्यूजिक में आएंगे, सडनली कुछ पैसा डालेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, तो भाई पहले ही दे देता हूँ मैं। अपना लॉस मेरे को चलेगा कि तुम दो गाने मेरे कम खरीदोगे ना, बट लेकिन तुम लाइफ में कुछ सीख के जाओगे। बट उनको वो गोल घूम के ही सीखना है। बहुत सारे लेबल्स ऐसे हुए हैं कि आए और गए, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी नहीं समझ पाए, वो बात ही नहीं समझ पाए कि और बहुत म्यूजिक सारे अगर न्यू एज बिजनेस के आर्टिस्ट साथ। भी सेम कंडीशन है उन लोगों का, आए और आर्टिस्ट गए। लोगों को तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं आर्टिस्ट के बारे में कभी बात नहीं करता। किसी भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं तारीफ करता हूँ तो करता हूँ, कोई मुझे अच्छा लग गया तो लग गया वैसा। अदरवाइज मैं किसी के बारे में बात ही नहीं करता, मैं वो कलेश में गिरता ही नहीं हूँ, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग हिसाब से कर रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, करेक्ट। किसी को मेरे से चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ फोन पे, मैसेजेस पे। जिनके पास, जो मेरे से टच में है, मैं उनकी हेल्प कर लेता हूँ, कॉल उठा लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो वो सारी चीजें हैं। बट हाँ, जो ये म्यूजिक वाला जो सिनेरियो है, ये वर्कआउट नहीं करता है हर किसी के साथ में। और आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही अगर दो चार चीजें करके करोड़पति कोई भी बन रहा होता, तो सारे गांव खाली हो जाते और सब मुंबई आके रह रहे होते और यही सब कर रहे होते। ये कहने की बातें होती हैं। मैं तो इतना ऑनेस्ट हूँ इस चीज में और इतना ओपन हूँ, गांव मैं खाली मुझे हो बहुत। जाता। ये अच्छा था। हाँ, हाँ, सब लोग यहीं आके, बहुत पैसा है भाई गाँव में, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो सारा पैसा दबा के रखते हैं, जी। छुपा के रखते हैं, जमीनों में डाल के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करके रखते हाँ। हैं। तो सब ये कर रहे होते, और ऐसे ही मुंबई में 10-15 घर खरीद के बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम्म। म्यूजिक म्यूजिक अलग चीज है, आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको समझने के लिए ट्राई नहीं करोगे। जब समझने के लिए जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये था। और मैं तो कितनी बार लोगोों को बोला है अंदर कि और पच रहा है इसका। हाँ, और म्यूजिक बिजनेस एक अलग चीज है, करेक्ट। क्रिएटिविटी अलग चीज है। करेक्ट। करेक्ट। क्रिएटिविटी इज अ These two are ब्लेसिंग, इट्स अ separate डिफरेंट पाथ। industries actually. हाँ, बिजनेस जो है वो अलग है। अगर आपको मिक्स करके चलना है तो फिर आप दोनों चीजें की पढ़ाई करो, समझो, लोगों से रहो, बैलेंस करो और करते रहो अपनी चीजें। Correct. और अच्छा म्यूजिक करो, अच्छी चीजें बनाओ। एक उसमें रैट रेस में मत लग जाओ, भेड़ चाल में मत लग जाओ कि अब ये चल रहा है, ये करेंगे, वो अभी हो रहा है ट्रेंड तो में पॉप आ गया था, I'll do pop. हाँ, मतलब वो ट्रेंड के हिसाब से चीजें चलाते हैं। मैंने तो कितनी बार अपने पुराने सेशन उठा उठा के जब भी देखे हैं, तो जो चीजें आज हो रखी मैंने वो 5-5 साल पहले प्रोड्यूस करके छोड़ दिया। मुझे लगता है कि अरे मैं हेड ऑफ टाइम चल रहा था, रुको 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 रुको, ये ट्रैक को उठा के रिसर्च करता हूँ, क्या किया था मैंने उस टाइम पे। मैं अभी उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं शांति से बैठ के अपनी चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें बनाई थी खुद से, बिना कहीं से सुने, जो आज के टाइम पे रनिंग है। तो मीन्स मैं उस टाइम पे ज्यादा इंटेलिजेंट था और ज्यादा म्यूजिक के साथ क्रिएटिव था। इंक्लाइंड, कि मेरी वो इतनी सटीक चल रही थी चीजें कि मैं हो रही थी वो सारी। तो मुझे वो वाला टाइम वापस लाना है, एंड मुझे वो सारी चीजें फ्री हैंड करनी है, अब किसी और के लिए नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं किसी और के लिए कर रहा था। तो मैं फ्री था मेंटली कि पैसे आ गए अकाउंट में, चलो बनाओ, तो मैं सारा एक्सपेरिमेंट करके देता था, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी सुन, वो भी सुन। And in that तो ये वाला instance you kind of learned कि synth design क्या होता है, ये क्या होता है, EQ क्या होता है, compression मैंने क्या होता है, basics. मोस्टली इंस्टीट्यूट पे जो सीखा था छोटा मोटा, उसको बाद बाद में एप्लीकेट बहुत ज्यादा किया। साउंड डिजाइन करना, Hmm. एटमॉस्फेरिक पैलेट बनाना, क्योंकि जब आप Correct. बैकग्राउंड स्कोर कर रहे होते हो तो आप बहुत ही इमोशंस के साथ खेल रहे होते हो, Right. चीजें Right. चाहिए होती है, मूवमेंट Layer चाहिए of होती है। synths and this and हाँ, going on. तो वो सारा करो। फिर गाने पे जब आए तो म्यूजिक प्रोडक्शन में भी मैंने वो चीजों को रेप्लिकेट किया कि यार यहाँ भी तो साउंड डिजाइन कर सकते हैं हम, अच्छा कुछ बना सकते हैं। जी. तो बहुत सारी चीजें रिजेक्ट हुई। रेगेटोन और मुम्बाटोन मैंने 2015 और 16 में पिच किया था लेबल्स को, कि भाई ये आने वाला है, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है दुनिया में, मेरे गाने ले लो। नहीं लिए। जब बाद में हट गया ये जॉनर तो मैंने एक मैसेज डाला कि मैं तो कर लिया था पहले ही, तुम लोग ही नल्ले निकले।
मैं तो उस टाइम पे कर लेता और शायद पहला होता। तो मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज And they अगर reached मैंने, you out for taking the song. हाँ, नहीं वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब तो वो बहुत कॉमन हो गई थी ना उस टाइम पे, फिर चीजें Common जब हो ये गई थी, हुआ। right? तो अभी आप देखो तो बहुत ही ज्यादा एफ्रो पॉप एंड देन मिक्स्ड विथ द व्हाट यू से कंट्री वाइज एलिमेंट्स, कि Correct. अगर एफ्रो अमेरिकन कर रहा है तो वो अपना स्टाइल से करेगा, जी. एफ्रो ये कर रहा है, उसको एक एफ्रो टर्म इसलिए लग गया क्योंकि वो उधर का बीट है, उधर का साउंड स्टाइल और पैलेट है। Correct. तो ये कुछ टाइम तक ये चलेगा, जब तक कोई एक पूरी की पूरी कम्युनिटी नया म्यूजिक लेके नहीं आती। हमारी कम्युनिटी तो कोई कम्युनिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कभी ये रिवोल्यूशन एवोल्यूशन वाले दो वर्ड होते हैं ना, यहाँ नहीं लग सकते हैं। यहाँ पे कोई करने भी सीधी जाएगा बात. तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टिस्ट लोग डिस मारते हैं, वो तो हमको यूट्यूब पे दिखते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म डिस मारते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डिस मारने बैठी है Correct. आपको। Correct. Correct. ये I क्या agree. लिखा है ब्रो, दिस इज नॉट वर्क इन इंडिया। अरे साले बाहर जाके देख, इंस्टाग्राम पे उसके 500 फॉलोअर है लेकिन स्ट्रीम्स में 10-10 मिलियन खेल रहा है वो बंदा, यही म्यूजिक बना के। ये उनको समझेगा ही नहीं कभी कि कंज्यूम ग्लोबली क्या हो रहा है, वो यही रह Ultimately, they are down जाएंगे। for the business. They want the royalties. आप अच्छे बना रहे हो, घटिया बना रहे हो, उनको झांट फर्क नहीं पड़ता. ये Very blunt. वही सारी चीजें है कि आप जब तक वो ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा। कोई ना कोई एक ब्रेक करना चाहिए। तो मैं यार हमेशा वो, ठीक है मैंने भी वो सारे गाने बनाए जो उस टाइप के इंडी और पॉप और ये वो, बट मेरा डेजर्ट सोल बना के मेरे को खुशी हुई। मैं बोला कि यार मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बनाया भाई। मेरे को खुद को लगता है कि मैंने इस चीज में बहुत काम किया, ऑडियो और वीडियो प्रेजेंटेशन बनाने में। साउंड इतनी डिफरेंट है उसकी, साउंड को कोई हाथ लगा ले आज का प्रोड्यूसर नहीं लगा पाएगा, समझ ही नहीं आएगा उसको किया क्या है बंदे ने। तो वो मेरा कैच है। बट मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि जो तुम लोग बना रहे हो तो मैं कॉपी कर लूंगा, मतलब एक ही दिन दे दो मुझे, वो तो मैं आसानी से कर लूंगा। बट जो मैं बना रहा हूँ क्या वो कोई बना पाएगा? तो मुझे वो चीज समझ में आई कि मेरी सालों की जो म्यूजिक प्रोडक्शन टेक्निक है वो मेरी सबसे बड़ी की हैंड है। दैट बिकॉज आई डोंट यूज लूप्स। मैं वो लूप पिटारे डालता ही नहीं हूँ अंदर। मैं चीजों पे अच्छे से काम करता हूँ, उसको डिजाइन करता हूँ और मैन्युअली प्रोड्यूस करता हूँ जो मेरी है। तो वो फ्रेश ही रहेगी, टाइमलेस है वो। बस ये है कि वो कब क्लिक हो राइट टाइम पे, और मैसिवली जब वो क्लिक होगी तो वो बन जाएगी चीज जिसको वायरलिटी बोलते हैं। बट मुझे बहुत मैथमेटिकली ये चीजों को मैं चाहता हूँ कि ये आए मेरे पास, ऐसे नहीं है कि हवा में आए। मैं इसको आते हुए देखूंगा, ऐसा आ रहा है तो आजा, बिकॉज ये आई जेब वांट खुला हुआ है, यहाँ पे घुस जाके. हाँ, बिकॉज आई वांट टू कीप दैट थिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। ऐसा नहीं है कि बस एक दो बना दिया और कुछ कर दिया और उसके बाद कुछ भी गाना अच्छा नहीं लग रहा, लोग बोल रहे हैं ये क्या बना रहा है, क्रैप। तो वो सेगमेंट में जाना ही नहीं है। अच्छे से पढ़ लिख लो, सारी टाइप की बंदूक के हथियार रख लो, वॉर में कौन सा काम आने वाला आपको नहीं पता। तो वो मेरी मेंटालिटी चलती है। तो डेजर्ट सोल का तो ये था कि ये How सेफ के how साथ। did that video kind of got nominated? Like you reached out to the people. सो शबीना का जो टीम है औरोरा, राहुल हम्म, और ये लोग, तो हम्म. इन्होंने वो पिच किया था। एंड दो पिचिंग, मतलब पहली पिच कहीं और थी, वहां भी नॉमिनेट हुए हम, और सेकंड यहाँ पे तो सीधा अवार्ड मिल गया एक कि बेस्ट वीडियो डायरेक्टर। मैं बोला अच्छा ठीक है, ये चलेगा, अपना ये कंटेंट नहीं मैंने बनाया। तो वो चीज हुई एक जो एड ऑन है लाइफ में। अच्छा लगता है कि जी. आपका कंटेंट आउट हुआ और रिकॉग्नाइज हुआ। हाँ, because to कम some लोग, extent आपका भी brain लगा हुआ है उसमें कि this is how it should go, this is how it हाँ हाँ, should ब्रेन portray the क्या, message. 6 महीने हम लोग ने काम किया उसके ऊपर, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के शूट किया, फिर गैप हुआ, फिर एडिट किया, फिर एडिट के बाद लगा कि यार ये चीजें ऐड कर सकते हैं। दो इट वाज डन इन वेरी मिनिमलिस्टिक बजट, बट जो आउटपुट हमने निकाला वो बट अप टू द मार्क निकाला है। मुझे ये चीज करते हुए समझ में आया कि अगर और थोड़े से फंड डालूं मैं, और अगर और थोड़े से लोगों को ऐड करूं तो ये और मैसिवली जा सकता हूं मैं इस चीज के अंदर। तो ये वाली सारी चीजें मेरे माइंड के अंदर एक ओपन हो गया। प्लस मेरा जो एक लुक आया है, जी. तो वो लोगों को लगा कि भाई साहब ये ऐसा भी दिखता है, Other ये side ऐसे of Pratik. एक्टिंग कर रहा है। तो मैं बोला ये भी बढ़िया है, ठीक है ये भी करेंगे। प्रतीक तो गांधी से अब प्रतीक हट गया था. अब जो कर रहा हूं मैं कि मैं अपने गानों में खुद ही फीचर करता हूँ, जी. चाहे व्यूज कम आए फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे इतना खाली बेनिफिट ये मिलता है कि लोग अब ऑडियो की बात करते हैं जो मुझे चाहिए। मेरे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या जहां भी चाहे
पहले जब मेरे लेबल्स के साथ काम करता था तो 2-3 हजार कमेंट्स थे, बट उसमें मेरे कमेंट नहीं हुआ करते थे। अब 20 कमेंट है, बट सारे मेरे 20 भी चलेगा, पढ़ता रहेगा अपने आप। कंटेंट बना रहे हो, सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि आपने ये चीज बनाई है यार, आपका म्यूजिक है, हक से बोल सकते हो, आप गा सकते हो, लगा सकते हो अपनी स्टोरी में, अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार तेरा ये वाला गाना सुना था, वो सुना था, अच्छा लगता And है। that's what artists live for hearing. हाँ कि कोई बोले कि this is something, you know, ये हाँ, kind of मतलब like fucked my mind, for example. जब डेजर्ट सोल आया था तो मेरा वो सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग वाला बोलता है कि सर ये आप ऐसे कैसे बन गए। मतलब बोला, उसने भी नोटिस कर लिया यार, कि उसको पता है मैं जिम जाते हुए और कैसा दिखता कितना innocently बोलते हैं ना people, we kind of see that in हूँ। their हाँ हाँ eyes. कि कितना मजा हाँ आता है सुनने में. हाँ। तो वो अच्छा एक वाइब मिलता है आपको। तो ये आप तब करते हो जब एक्चुअली आर्ट आर्टिस्ट के साथ बाहर जाती है। मतलब बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं ये। आर्ट I agree. आर्टिस्ट के साथ बाहर जाती है I तभी ये agree. चीज होता है। I agree. आर्ट दूसरा आर्टिस्ट के साथ बाहर जाती है ना तो लोगों को लगता है कि उसकी कला है, हमारी कुछ थी नहीं। कुछ डाइल्यूशन हो जाता है वहां पे. हाँ, तो मेरे साथ ना बहुत हुआ है, मेरे अच्छे अच्छे गाने रह गए इसी सब चक्कर में। लोगों को पता ही नहीं वो गाने मैंने गाए। अच्छे अच्छे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उन पे, बहुत सारी चीजें हैं, एंड किसी ने ट्राई नहीं किया वो गाना देखने और सुनने के बाद कि इस आर्टिस्ट को ढूंढूं मैं, इसकी आवाज अच्छी है। कमेंट्स में वहां पे मिलेगा आपको सब कुछ, इधर उधर की सारी बातें हुई, बट कभी रीच आउट नहीं हुआ क्योंकि वो चैनल किसी और का, वो गाने कहीं और पड़े हुए हैं, उस पे एक्ट कोई और कर रहा है। राइट्स भी किसी और के, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज चले गए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो था. try कि आपने उनको खुद ही अपने दिल की इच्छा से ही बेच दिया, तो फक इट वाली फीलिंग है वो। राइट, जाने दो, भाड़ में और जाओ. नए बना लेंगे, नए और 4 बिल्डिंग खड़े कर देंगे वैसे गानों के। बट जो चीज एक्सपेक्ट करते हो आप वहां से एटलीस्ट कि यार यहाँ पे तो लेबल था, यहाँ तो सब कुछ था, यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो मतलब या तो वो क्या बोलते हैं उसको, अ, अ, एक टर्म है, क्या बोलते, खोट, हाँ अच्छा. वो थी, जी. वो ज्यादा थी। वो ब्रेन ज्यादा था कि मैंने इतने पैसे डाले, इतने पैसे बन जाने चाहिए, जी. ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, वो ज्यादा था, तो वही ज्यादा रह गया। उसी की बात हो गई, उसी की बात रह गई, और कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं मानता हूँ ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हमारे अगर पिछले लोगों के साथ बैठोगे तो वो आपको सारी बातें बताएंगे, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था, तो आपको वो सारी चीजें डायरेक्ट मिलती थी फ्री में, आपको खाली बैठना होता था चुपचाप। अब भी आप बैठ के लेके दिखाओ नॉलेज अच्छा। बैठ ही नहीं पाओगे, वही तो क्वेश्चन है. नॉलेज तो लेने की बात तो दूर है. यू जस्ट कांट मैंने सिट तो यार सिट तब, फॉर 10 मिनट्स, यू विल बी लाइक शेकिंग. हाँ, फोन उठा लेते, यू नो, ये कर लेते, वो मेरी कर भी, लेते. मेरे साथ भी अगर लोग जब से बात करने बैठते हैं और जब फिर मैं वो जाता हूँ ना रियलिटी के ग्राउंड तक और चीजों के डेप्थ तक जाने लगता हूँ, लोग घबरा जाते हैं, मेरे टॉपिक से हट जाते हैं, डर जाते हैं, अभी कुछ तो बोल देगा ऐसा जो लग जाएगा 3 दिन तक उतरेगा नहीं वो। हाँ, 7 दिन नींद नहीं आएगा. हाँ, आई एग्री, मेरे साथ भी होता है सेम थिंग. आते हैं कुछ काम करने के लिए, आते हैं, मैं झिझोड़ देता हूँ 5 मिनट के अंदर कि मुझे ये चाहिए था, ये करना है, अब ये करना है, करो। तो ये कैसे करेंगे, मैं बोला यही करना है। अच्छा ठीक है, घर जाते हैं, घर जाके करेंगे। अरे पागल है क्या, यहाँ बैठ के नहीं कर पाया, घर जाके क्या करेगा। मतलब तो सिंपल घर बात जाने नहीं करना के चाहता है वो. हो नहीं पाएगा, बोल हो नहीं नहीं सकते अब, पाएगा. हाँ, करेक्ट. क्योंकि अब मैंने वो चीजें वैसी कर दी है कि यार अब मुझे ये वाले काम करने हैं, मुझे ये वाली चीज करनी है, मुझे इस टाइप के लिरिक्स चाहिए, ये म्यूजिक करना है, मेरा ये एटमोसफियर होना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ उस चीजों के अंदर, और मैं उन स्ट्रिक्ट चीजों में इतना स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरे को कोई आगे दूसरा कोई रैंडम अगर गाना प्ले कर देगा ना, उसके फोन से बंद कर दूंगा मैं, मुझे नहीं सुनना, बंद कर। मतलब मेरे पूरे घर में, सराउंडिंग में, हॉल में, वो दूसरे स्टूडियो में, यहाँ पे कोई भी किसी की भी रिंगटोन अच्छा, जो भी यू आर मेरा हैविंग टू सिस्टम है, स्टूडियोज इनसाइड योर होम. एक रिकॉर्डिंग रूम है और अच्छा. एक ये है। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग ही रूम है. पे फिलहाल जो एडिट हो रहा है, क्योंकि हम्म. मैंने अपना माइक वाइक सब यहाँ लगा दिया है फिलहाल, तो वो भी एक पॉइंट चालू है दूसरा, वो एक क्योंकि एलटीडी मैंने का गिटार है ना. ये ESP LTD एंडी जेम्स सिग्नेचर सीरीज। Oh my God, I love that. I have covered some songs of that mighty guitar player. He is just a fucking monster, man. He's fucking monster. आई यूज्ड टू लिसन टू हिम बैक इन डेज, तो बहुत अच्छी मुझे बात वो बोल रहे गिटार हो आपने. तब वो जब लिक लाइब्रेरी में वो लेसन्स देते थे ना, तब ही यूज्ड टू यूज दिस गिटार. हेयर बैंड लगा देता था फर्स्ट फ्रेट पे ताकि फ्रेट नॉइस कम हो जाए. फिर तो लगा हुआ है बैंड, आज भी लगा हुआ है। वो एंडी जेम्स का सिग्नेचर है, वो हेयर बैंड नहीं हटाना है. हाँ, वो नहीं हटाना है, और वो ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, नो अदर कलर, हाँ हाँ, वरना एंडी जेम्स ऑफेंड हो जाएगा.
रिचुअल खराब नहीं करते हम, वो ही रखते हैं, वो उसको एकदम परफेक्ट, करेक्ट. तो वो है रॉक मेटल वाला एक जोन मैं आया हूँ जी के, अच्छे से तगड़े तरीके से मेटल और रॉक कंज्यूम किया है और प्ले किया है, परफॉर्म किया है, तो वो एक चीज थी अंदर. बाद में ये मेलो चिल आउट म्यूजिक, बॉलीवुड स्टाइल, कमर्शियल और ये सब में घुसते 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 मेरा भी ऐसा हो गया था. अब लेकिन अब फिर वो वापस ऐसा चाहिए. So you listen तो to अब metal उसको these days? नहीं, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग वट एवर आई हर्ड एंड आई एम जस्ट कन्वर्टिंग the patterns or the style of or the headbanging grooves and how to convert into electronic music, how to use those things, and Influences. recreate something. और Right. कहीं कहीं मैं गिटार का भी यूज लेके आऊंगा उस म्यूजिक के ऊपर, बट वो डेवलपमेंट एक प्रोसेस में एक लेवल के अब आने के बाद मैं गिटार को उठाऊंगा. तो गिटार को मैंने बोला है कि अब तेरा टाइम आने पे तुझे उठाया जाएगा, ऐसा बोल के मैंने उसको रख दिया है. काफी टाइम से छुआ नहीं है वो. उसका फिर एक मोमेंट आएगा कि अगर वो 2 नोट भी बज रहे हैं तो वो 2 नोट की value रूट जाएंगे गिटार्स. नहीं वो कहीं नहीं जाएंगे. कहीं नहीं जाएंगे ना, तो ठीक है. गिटार्स वो जाते नहीं, वो कभी भी उठा के उसको बजाना तो शुरू ही रहता है. बस हाँ, उनको रिकॉर्ड करके क्या करना है वो उसके लिए अभी भी जद्दोजहद शुरू है मेरी. बट हाँ, वट एवर इट इज लाइक, आई कम डाउन टू सर्टेन पॉइंट्स इन माई लाइफ जहाँ पे मैं बहुत चूजी हो गया हूँ म्यूजिक को लेके. जैसे इंसान खाने को लेके रहता है ना, जी. मैं म्यूजिक को लेके हो गया हूँ बहुत प्रिसाइज कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं. अब ये तो कुछ भी हो जाए मुझे नहीं चाहिए. Putting filters, what I want, what I don't want. हाँ, क्योंकि अब वो क्या होता है ना, बोलते हैं ना, अभी जैसे एक प्लेन शर्ट पहनी कितनी अच्छी लग रही है, 3 पहन के आऊंगा तो कैसा चू लगूंगा यार. यार वो हो जाता है ना. आप सीखते हो लाइफ में सारी जी, चीजें कर लेते जी. हो. और आप बहुत ज्यादा ओवर म्यूजिक करते हो जब अलग अलग लोगों के साथ म्यूजिक 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 कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलता है आपका रंग कौन सा है. कई बार ऐसा वो होली खेल लेते हैं ना दूसरे की म्यूजिक से, ओह, थोड़े टाइम लगता है स्पार्कल्स, बाद में समझ आता है नहीं. ग्रीन कब हो गए हम लोग? तो ये है सारी चीजें, बट या That's very uplifting. That's a good start you came from. I hope all the listeners who have listened so far would be delighted. I think for the audience, I'm saying this is my first podcast after 4 months. I did a break. I don't know why. I was kind of lazy, kind of hit a threshold because all the podcasts I've made out in the past, वो एक दिन का 3 इंटरव्यूज हो रहा है, हफ्ते में आई एम डूइंग 10. हेक्टिक हो जाता है. एंड देन आई डिडंट हैव द मनी टू हायर एन एडिटर बिफोर दिस, तो मेरे को खुद एडिट करना पड़ता था. थंबनेल्स, पोस्टर्स, एवरीथिंग आई हैव टू मेक एंड देन पुट आउट. सो फॉर मोर देन 50 एपिसोड्स आई हैव डन दैट. तो मैंने सोचा 4 महीने का एक ब्रेक लेते, बिकॉज एक इंटरव्यू होने के बाद यू हैव टू एडिट इट फॉर, और एडिटिंग को आपको पता है वीडियो एडिटिंग कितना टाइम लगता है. एवरीथिंग करके 3-4 घंटा तो मिनिमम, और उसी दिन अपलोड करना है. तो ठीक है, लंबी कहानी है. तो आई यूज्ड टू डू दैट. तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. दिस विल गो अंडर द प्लेलिस्ट द सिंगर सॉन्गराइटर चेकलिस्ट, जहाँ पे हम सारे सिंगर सॉन्गराइटर्स वुड कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. एंड once again, Pratik, I'll leave all of his works and links in the description. Please do support him. उसको support की आपको जरूरत है नहीं वैसे. नहीं बिल्कुल सपोर्ट but he is always, नहीं यार, he's doing a great work. Very good singer songwriter, composer, and hit him up if you want to get some work done. And once again, Pratik, thank you so much for taking some time out to join for this from your busy schedule. थैंक यू सो मच. बिजी तो यार मैं अपना म्यूजिक ही बना रहा था. कल हम लोग कल करने वाले थे ना इंटरव्यू. हाँ, कल करने वाला था, फिर मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आ गया. तभी ना ऐसे थोड़ी सी घबराई हुई टाइमिंग. मैं खुद घबरा गया कि यार मैं प्रतीक को वापस घुमा दूं यार, दिस इज नॉट फेयर. टाइमिंग ऐसा होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ वैसा, वो प्रिसाइज वाला होता है ना थोड़ा. जी, आई एग्री. चलते हैं हम लोग वो हल्का सा नॉब ऐसा 0.22 करके भी सुनूंगा क्या हो रहा है. तो वो टाइम वाला ऐसा रहता. तो मैंने बोला कि फिर आज 9 बजे का, मैंने उसको क्लियरली बोला फोन पे कि आज 9 बजे का डन करते हैं. उसने तुम्हारे साथ भी 7 बजे का डन कर दिया. और आपने 9 बजे बोलने के पहले मैंने उसको 7 बजे बोल दिया था. फिर वो आपको 9 बजे बोले, वापस रिवर्ट करके अच्छा 7 बजे था. मैंने कहा यार
हाँ, फिर मेरे को उसने बोला 7 बजे, फिर मेरा 7 बजे कुछ और था तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, और कुछ काम मैंने पहले कर दिया, तो मैं बोला रुक रुक करते हैं इसको, अभी नहीं टालते, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये आगे पीछे हो रही है चीज। तो जब भी ऐसा लाइफ में जिंक्स आता है ना, तो मैं, अभी तुमने तो बोल दिया मेरे को सपोर्ट करो, ये करो वो करो, जो भी, मैं सब लोगों से ये बोलता हूँ कि जब भी तुमको ऐसा लाइफ में ग्लिच लगता है ना, उसको रोक दो वहीं पे, एंड जस्ट पिक वन थिंग, और जब आप वो करते हो ना, तो फिर ये सारी कंफ्यूजन हट जाती है। मैं कल बोलता है कि अब आज नहीं करते, एक काम करते, अब तूने टाइम कुछ और दे दिया, कल करते हैं। मैंने क्या बोला, 7 बजे डन, मैंने अपने आगे पीछे की चीज शिफ्ट कर दी। दिस इज हाउ यू एडजस्ट Just व्हेन right. यू आर आर्टिस्ट, व्हेन Correct. यू आर अ म्यूजिशियन, लाइक हाउ यू डिड, तुमने अपना एडिटिंग किया, चीजें करी कि ये नहीं है तो मैं कर लूंगा, बट उसको रुका नहीं, वो करते रहे हम। जी। तो सारे लोगों के लिए वही है। बाकी इनका यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करो, इनको अरे स्पॉटिफाई यार। पे और बिल्कुल, और भी मेरे जैसे खतरनाक डेंजर लोग आएंगे यहाँ पे, और कुछ आके भी गए होंगे। जी तो सुनो। ना ना खतरनाक सीखो, कोई आगे आज तक बढ़ो। मेरे को कोई मारपीट नहीं किया मेरे साथ। Perfect. It was a great session, bro. मजा आ गया। बहुत मजा आया. Thank you so much for joining in, Pratik, and to all the listeners once again. Sara links will be in the description. Please do check him out. Listen to his music. Please support, and I hope you enjoyed this conversation as well. Thank you, Pratik, once again. Such a pleasure meeting Thank you. Thank you, bro. Thank you so much. Keep shining. Yes. You too. Well, with that, we end this podcast session. Thank you so much for all who are still sticking out till the end. I hope you got to learn something. Once again, please don't get tired of your social media addiction. Instead, give us a like, share this video with someone you think it might help. And once again, thank you very much for watching. Cheers.